So we have yesterday we have started with dictionary concept. Yes, operations and different methods we have already seen. Now there are many different methods available, inbuilt methods available to perform some complex operations on dictionaries, right? Like if we want to clear out all the dictionary contents, if we want to copy one dictionary, and like we want to create one same dictionary as it is, right? We can use copy function. We have some more functions like from, keys, items, which can be represent our dictionaries in some different way, in different kind, like tuples form होते हैं each and every dictionary के contents के, right? So if we want to create a new kind of look like directory, then we can use this items वाले functions, keys. We have already seen these two functions. These two methods we have already seen while we are just introducing in dictionaries in first unit. So keys nothing but just to retrieve keys, list of keys, and values method is simply returns you the list of values available inside your dictionaries, right? And pop is the method to just remove items from dictionaries, right? And sort is a very important concept. Sort is the method used to just simply list to sort your list based on keys, right? So ये keys का जो भी है, keys जितने आपके डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल है, based on that keys this sort method sorts your dictionary, right? And proper ascending order, right? Now we'll see one by one. Clear simply used to clear out all the elements present inside your dictionary, right? So just open your IDLE shell. Just make one simple directory and variables. Okay. If suppose I have one directory like 0 colon red suppose I am having one dictionary with this three elements, right? 0 and 1, 2 are nothing but keys available inside this dictionary, and red, blue and green are nothing but particular values, right? Okay, now if suppose I want to clear out all the contents present inside this dictionary, then I can directly use this clear method, right? Simply you have to write d dot clear. Okay. After that, what should be your result of this print statement? Tell me, क्या print होना चाहिए after this? You have cleared out all the contents available inside this dictionary. Then what should be the result of this print statement? Tell me. It will return you empty dictionary. Yes, this is nothing but you are just getting empty dictionary. Is it? Everyone is getting one empty dictionary? Tell me. Yes, ma'am. Yeah, so this is nothing but your first method, clear. Second one is nothing but your copy. If you just want to form one dictionary same, exactly same as any other dictionary, then you can simply copy, use this copy method. No need to pass separate elements for this new dictionary, right? So अच्छा ये function so if suppose we have one method one dictionary, if d1 and d1 ऑलरेडी है क्या, मेरे पास एक d है, d empty हो गया, ठीक है? हम लोग फिर से यही सेम बना देती हूँ मैं पहले, Control C. I have one dictionary. Yes, ma'am. Okay, I want to create the same dictionary like this, which will having the same content, right? Which will having same elements inside the dictionary. So if I just use this copy method, I can directly create one dictionary like the same, like D. So if suppose D1 equals to D dot copy, right? Third, copy method will copy all the contents of this D into D1, right?
So we are just creating same lookalike directory of this like same जो D already हमारे पास available है उसके जैसे ही दिखने वाली same directory हम लोग बना रहे हैं कौन से नाम से using D1 पे D1 नाम की हम लोग same directory बना रहे हैं. So if you just प्रिंट दोनों करके देखते हैं हम लोग भाई विल जस्ट प्रिंट बोथ द डायरेक्टरीज प्रिंट डी एंड देन आई जस्ट print another directory as well d1 right so both are exactly copy of each other is it clear copy function yes am I audible Yes, ma'am. okay fine so next is nothing but your from keys okay from keys it will create one dictionary from given sequence and values अभी ये from keys वाला method generally कब use होता है when you have one जब देखो अभी यहाँ पे एक मैं example दिखा देती हूँ when for each key if you want to set same value right सेम वैल्यू जैसे कि सारे स्टूडेंट के लिए कॉलेज का नाम सेम ही रहता है ये सुनो तो सारे स्टूडेंट यहाँ पे अगर राहुल आता है रोहन आता है प्रिया आता है सबके लिए डी वाई पी सेम होगा तो ऐसा जब आपको डिक्शनरी फॉर्म करना होगा तो ये दिस काइंड ऑफ मेथड यू कैन यूज if you want for all keys you want to set same value right same value then and only then you can use this from keys wala method what you have to do in this method you just simply have to create one key set if suppose I have created one set of keys if suppose I have created like 1 2 3 4 right this is nothing but my key का एक set मैंने form किया है and for that all available keys inside this list I will set one value तो ये वैल्यू मुझे सेट करनी होती है सेकंड कंसेप्ट क्या है ये फ्रॉम कीज मेथड का यू हैव टू सेट सम वैल्यू फॉर ऑल द अवेलेबल कीज तो अभी सपोज मैंने यहाँ पे dy ऐसे सेट किया है राइट विल बी परफॉर्म्ड विद दिस फ्रॉम कीज मेथड देखो अभी एक d1 हम लोग डिक्शनरी फॉर्म कर रहे हैं डिक्ट से क्या होता है डिक्ट वी हैव ऑलरेडी सीन यस्टरडे डिक्ट फंक्शन और हमारा फ्रॉम कीज है एंड वैल्यू डिक्ट क्या करता है टू क्रिएट डिक्शनरीज वी हैव ऑलरेडी सीन यस्टरडे रिमेंबर और नॉट गाइस टेल मी dict function is used to create dictionary yes or no dict के अंदर simply we have to pass in the form of keys and values के pair के form में आपको pass करना पड़ता है it will create a dict function will create any dictionary right you can create any new dictionary right so ये dict वाला function use किया है कहाँ गया इसी यहाँ पर सो डिक्ट फंक्शन यूज किया है एंड फ्रॉम कीज इसके वजह से क्या होने वाला है ये सारे के सारे वैल्यूज जो है ये पर्टिकुलर कीज के साथ रिलेट हो जाएंगे राइट वी हैव पास 2 आर्ग्यूमेंट्स टू दिस फ्रॉम कीज मेथड कीज जो भी हम लोगों ने की का लिस्ट प्रिपेयर किया है एंड देन वी हैव सेट वन वैल्यू फॉर दैट ईच एंड एवरी कीज चेक करो then we have to simply print d1 clear है yes from keys everyone tell me hello am I audible or not yes Yes, ma'am. then why you are not responding today tell me from keys is just a method available when you just want to set same value for each and every keys available inside your dictionary right जब भी आपको सारे के सारे keys के लिए एक ही सारे के सारे keys के लिए एक ही सेम ही वैल्यू सेट करनी है right then you can go with this key from keys वाला method clear Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay
ठीक है। आइटम्स मेथड यूज करके क्या कर सकते हो आप? सिंपली यू कैन फॉर्म लिस्ट ऑफ टपल्स। जो भी डिक्शनरी आपके पास है उसका एक न्यू वे में रिप्रेजेंट करने का एक ये मेथड है, राइट? रिटर्न्स अ न्यू व्यू ऑफ डिक्शनरी आइटम्स। इसका मीनिंग क्या है? जैसे आप डिक्शनरी फॉर्म करते हो लाइक कर्ली ब्रेसेस के अंदर कीज एंड वैल्यू पेयर में करते हो, तो ये आपको आइटम्स मेथड सिंपली रिप्रेजेंट्स योर डिक्शनरी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ टपल्स। मतलब एक आपका लिस्ट फॉर्म हो जाएगा और उसके अंदर की वैल्यू पेयर के टपल्स फॉर्म हो जाएंगे सेपरेटली, राइट? सेपरेटेड बाय कॉमास। तो अभी ये देखते हैं क्या कंसेप्ट है। ओके, डी मेरे पास है क्या? यस, डी डिक्शनरी ऑलरेडी आई हैव, राइट? सो यही डी नाम के डिक्शनरी के ऊपर हम लोग ये परफॉर्म करके देखते हैं। सिंपली इफ आई जस्ट वांट टू print or just represent this dictionary in the form of list of tuples, then I'll just write d dot items, जो मेरे मेथड का नाम है, that will come here, right? आइटम है क्या? आइटम्स क्या गलत किया? ओ, डॉट होना चाहिए। वेट, डी डॉट आइटम्स, कॉमा लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है। सो देखो, ये dict items is nothing but one inbuilt object present inside this dictionary class, right? एक पाइथन के अंदर जो डिक्शनरी नाम का क्लास होता है उसका ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है और उसके साथ ही एक ऑब्जेक्ट हो गया, फंक्शन आप बोल सकते हो भाई, और उसके अंदर ही आपके एक लिस्ट फॉर्म हो रही है। यू कैन सी, ये एक लिस्ट फॉर्म हो रही है और उसके अंदर आपके सेपरेट की एंड वैल्यूज के पेयर जो थे आपके डिक्शनरी में वो रिप्रेजेंट हो रहे इन द फॉर्म ऑफ टपल्स। yes or no? So it will just form one new view of your dictionary, right? Items method, is it clear? Yes, ma'am. Okay, so you examiner may ask you how to represent your dictionary in the form of list of tuples, then you have to use this method, items method. These questions may ask in your like final like practical exams. Just tell me how to represent and show me how to represent this dictionary in the form of a list of tuples, then you have to simply use this kind of functions, right there. Okay, so keys is already we have seen while we are just introducing this dictionary concepts. So keys simply returns you the list of keys. Values is nothing but simply returns you all the list of values, right? वो सॉर्ट करता है, ओनली कीज को बाहर निकाल के उसका एक लिस्ट फॉर्म करेगा। वैल्यूज फंक्शन क्या करेगा? सिंपली एक सारे के सारे वैल्यूज को बाहर निकाल के उसका एक लिस्ट बना के आपको रिप्रेजेंट करेगा, भाई ये दोनों भी देखते हैं। अब सपोज b equals to 0 कोलन, ना मैं 1 से कर देती हूँ क्योंकि मुझे एक सॉर्ट वगैरह भी करना है। रेड कॉमा 1 कोलन 2 कोलन एंड green, right? If suppose I'm having one dictionary, so if I want to just, अरे 1 2 3 होना चाहिए था। कीज को कोई अपडेट करने की हम लोगों ने देखी थी क्या मेथड? कीज को अपडेट करने का कोई मेथड नहीं है, वैल्यूज अपडेट करने के मेथड्स है, ये सुनो। वो कीज यूज करके हम लोग वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं, बट ये कीज को अपडेट नहीं कर सकता है, ये सुनो। Okay, so we have Yes. one dictionary like this. If suppose we are having one dictionary like this, and we have to perform now keys and values, these two methods on that particular dictionary, right? Okay, dictionary available hai. Now simply I'll just print inside that print only, I'll just use this keys and values pair. D dot keys function है, method है, so you have to compulsorily use this opening closing brackets.
ठीक है. सो डिक्ट कीज ये भी एक फंक्शन है अवेलेबल इनसाइड योर डिक्शनरी क्लास. राइट, जो भी डिक्शनरी वाला क्लास अवेलेबल है उसके अंदर का ये एक फंक्शन है. एंड इनसाइड दैट यू आर गेटिंग वन लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल कीज. तो ये 3 क्यों नहीं आता? ओके, आई जस्ट राइट डी ओनली. वेट सर, D1 डॉट कीज. ठीक है, गेटिंग वन लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल कीज. देखो अभी D1 के अंदर क्या क्या कीज अवेलेबल है, 1 2 एंड 3. यस, यू आर गेटिंग लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल कीज. यस, टेल मी. Yes, ma'am. यस, यहाँ पे डी लिखा था, उसके लिए उसने दो बार 1 है, इसके लिए उसने 1 एंड 2 ओनली 2 कीज रिटर्न की है. यस और नो? मैंने यहाँ पे D1 लिखना चाहिए था, यहाँ पे D लिखा था गलती से. देन इट हैज रिटर्न्ड मी ओनली 2 वैल्यूज बिकॉज 1 इज रिपीटेड. तो वो 2 बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा भाई. एंड ये D1 जो हम लोगों ने फिर से बनाया था, क्योंकि कीज को अपडेट करने का कोई हमारे पास प्रोविजन नहीं है. उसके वैल्यूज हम लोग अपडेट वाला मेथड हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कल, अपडेट कैसे करना है वैल्यूज को. यस. सो अभी मैंने D1 बनाया था, उसके सारे कीज मिल रहे हैं. अभी वैल्यूज एक जो मेथड है, यू कैन चेक वैल्यूज वाला मेथड चेक करो. D1 already we have, right? D1 already we have. Print D1 dot values. क्या मिलेगा अभी बताओ, क्या लिस्ट मिलने वाली है? यस, एग्जैक्टली. राइट, यू विल गेट हियर रेड ब्लू ग्रीन. क्या हो गया यार ये? कोई तो एक बताओ ना. कंट्रोल एक्स ही हो गया. टॉपिक क्यों दिया है? चेक करो आ रहा है क्या? रेड ब्लू ग्रीन D1 Yes, ma'am. equals to 1 colon red comma 2 colon blue 3 colon green. वही मैंने बोला. Print मैंने वही डाला था पहले, तुम सबमिट करो. keys. You are getting just key ka list, and then if I just print only values, D1 dot value. ठीक है, तो रेड ब्लू ग्रीन का भी एक लिस्ट बन के मुझे फॉर्म हो रहा है. डिक्ट अंडरस्कोर वैल्यूज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्ट अवेलेबल इनसाइड योर डिक्शनरी क्लास. राइट, ओके. नाउ आफ्टर दैट वी हैव पॉप. पॉप मेथड क्या कर सकता है? वी हैव ऑलरेडी सीन इन लिस्ट वाला कंसेप्ट. पॉप से हम लोग रिमूव करते हैं आइटम्स को. फाइन. सो डिक्शनरी के केस में भी सेम पॉप इज यूज्ड टू रिमूव आइटम्स दैट वी वांट टू रिमूव फ्रॉम योर डिक्शनरी. राइट. सो इफ सपोज कोई भी आइटम को मुझे रिमूव करना है, सेम वे हम लोग कीज का ही यूज करके वो रिमूव कर सकते हैं. राइट. having one dictionary, 1 red, 2 blue, 3 green. ठीक है, if suppose I want to just remove this green, right? So I have to just like represent that 3 वाला 3 green वाला value with this key 3. ठीक है. So if I just write like D1 dot pop you have to write, and then inside that you have to write this 3. तो जो pop होने वाला है वो only आपको दिखेगा. Then you have to just display your dictionary. Yes, print D1 लिखो या directly D1 लिखो, you will just get the final dictionary after just removal of any one just given आइटम. जो भी आइटम आपने रिमूव किया है वो रिमूव करने के बाद वो आपको डिक्शनरी रिप्रेजेंट हो जाएगी. अभी अब सपोज मुझे डिक्शनरी में से 2 वैल्यूज रिमूव करने हैं, 3 वैल्यू रिमूव करने हैं. हाउ विल यू डू दैट थिंग? टेल मी. इफ आई एम हैविंग वन डिक्शनरी लाइक दिस, 1 red, 2 blue, 3 green. करो, ट्रायल एंड एरर करके देखो. इफ वी वांट टू डिलीट मल्टीपल एलिमेंट्स,
कैसे करोगे? So you cannot, one person has already selected. Yes. इसमें से उन्होंने कौन सा सेलेक्ट किया वो भी मुझे पता है, तो वो फाइनलाइज टॉपिक के बाद ही हम कर सकते हैं ना। ओके, यहाँ पे देखो d1.pop 1,2 ऐसे दिखना पॉसिबल नहीं होता है भाई, वो डायरेक्टली फर्स्ट वाला ही रिमूव कर देगा भाई। इस केस में भी वो फर्स्ट ही एक ही रिमूव कर देगा। यू कैन चेक योर डायरेक्टरी अगेन, उसने ओनली रेड वाला ही जो फर्स्ट एलिमेंट है वही रिमूव किया है। इफ सपोज यू वांट टू रिमूव लाइक मल्टीपल एलिमेंट्स एट अ टाइम, सो आपको ये पॉप वाला फंक्शन भी रिपीटेड बार दिखना पड़ता है राइट। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी के केस में लिस्ट में वगैरह हम लोग कॉमा करके भी वो डिलीट कर पा रहे थे राइट। सो d.pop जो भी है, सपोज मुझे 2 वाला डिलीट करना है, कॉमा d1.pop और ये 3 राइट। सो यू हैव टू डू लाइक दिस, ठीक है। तो ब्लू एंड ग्रीन दोनों डिलीट हो रहे हैं। यू कैन चेक योर डिक्शनरी अगेन। सो ओनली यू आर लेफ्ट विथ 1 एंड रेड। इज इट क्लियर? ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउ टू डिलीट मल्टीपल एलिमेंट्स। यस, डोंट से लाइक दैट यूजिंग कॉमास एंड ऑल, ठीक है। इज इट क्लियर हाउ टू रिमूव items that we want to remove from dictionaries? Yes, ma'am. Okay. Sort. Now next is your sort function, right? So simply sorts based on your keys जो भी अवेलेबल है वो उसके बेसिस पे ये sort function आपके सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट करता है, ठीक है। सो इफ सपोज अभी मैं एक डिक्शनरी फॉर्म करती हूँ, थोड़ा सा अनसॉर्टेड वे में मुझे डिक्शनरी चाहिए भाई। तो पहले मैं लाइक 3 कर देती हूँ, कमा blue and suppose 2 है colon green, right? So I have created one dictionary with some on unsorted order, right? अभी ये 3 यहाँ पे है 1, अभी मुझे चाहिए कैसे 1 2 3 कीज के ऊपर बेस्ड ही वो सॉर्ट होता है ऑलवेज, राइट। ऑलवेज कीज के ऊपर ही वो बेस्ड जो होता है सॉर्टिंग आपका बेस्ड होता है, राइट। सो अभी मैं काम कर देती हूँ। अभी ये सॉर्टिंग के भी ना 2 मेथड्स है, जो मुझे 2 पता है वो मैं बता देती हूँ। 2 वेज से यू कैन सॉर्ट योर डिक्शनरी। अभी एक तो मेथड बता देती हूँ, आई एम जस्ट क्रिएटिंग वन लिस्ट एंड d.keys, सिंपली कीज जो है मैं सॉर्ट करके डिस्प्ले करवा रही हूँ, नथिंग एल्स। d डॉट चाहिए यहाँ पे, दोनों मेथड्स बता रही हूँ। d.keys भी एक फंक्शन है, मेथड है। यू हैव टू स्पेसिफाई दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, राइट। then simply I'm just printing my list, okay, but then 3 2 3 1 2 and my list dot sort। एक मिनट है, ये सारा ना मैं इसके अंदर करके दिखा देती हूँ। ये एक एक इसका यहीं पे आंसर आ रहा है ना, वैसे नहीं चाहिए हमें, तो स्क्रिप्ट मोड में उसे मूव कर देती हूँ। ये मुझे ओनली कीज को बाहर निकाल के मैंने उसका एक लिस्ट फॉर्म किया है, इसके लिए मैंने ये प्रिंट डाला है, और वो लिस्ट को ही मैं सॉर्ट करने जा रही हूँ भाई। इन शॉर्ट में क्या करने जा रही हूँ, ये सारे डिक्शनरीज में से आई एम जस्ट सॉर्टिंग और आई एम जस्ट टेकिंग ऑफ कीज ओनली, मैं 3 1 2 ये मैं कीज बाहर निकाल के ले रही हूँ और वो की का एक लिस्ट फॉर्म कर रही हूँ, एंड देन दैट लिस्ट को मैं सॉर्ट कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने इसे स्क्रिप्ट मोड में ट्रांसफर किया है, माई लिस्ट डॉट सॉर्ट मेथड। और अभी सिंपली प्रिंट कर देती हूँ लाइक सॉर्टेड लिस्ट बेस्ड ऑन कीज, लाइक ऐसे कुछ तो मैंने स्टेटमेंट लिखा है। अभी देखो यहाँ पे लिस्ट मतलब कोई एक एलिमेंट नहीं है, मल्टीपल एलिमेंट्स है भाई। तो सॉर्ट करना है आपको, तो और वो प्रिंट करना है भाई, तो आपको लूप का यूज करना ही पड़ेगा। यस और नो, एक सिंगल वेरिएबल नहीं है, सिंगल एलिमेंट नहीं है भाई, मल्टीपल एलिमेंट्स अवेलेबल है हमारे लिस्ट में, और उसे हमें सॉर्ट करके रिप्रेजेंट करना है, या जिस ट्रैवर्स करना है, यू कैन से, जैसे हमें लिस्ट में ट्रैवर्स करने के लिए हम लोग फॉर लूप यूज करते थे, सेम कंसेप्ट ना। सो माई लिस्ट
यूज किया है, एंड सिंपली आई एम जस्ट प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ आई। ये वाला कंसेप्ट हम लोगों ने लिस्ट ट्रैवर्सिंग में देखा है ऑलरेडी, राइट? चेक करो, याद नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सो जस्ट चेक नाउ व्हाट दिस प्रोग्राम इज गिविंग यू आउटपुट। ओके, देखो अभी मैंने किया क्या है, सिंपली आई हैव जस्ट I've just take off all the keys from this V1 dictionary. ये 3, 1 and 2 मैंने पहले sort करके लिया, ये sort you can say कि मैंने बाहर निकाल के लिया है, and then after that on that particular list I have applied this sort वाला concept. Is it clear? And जो भी sorted है मुझे 1, 2 and 3 मिल रहा है. Yes. Yes, is it? Tell me. Understood everyone? Hello, am I audible? Yes, ma'am. First, I have taken one dictionary. फ्रॉम दैट डिक्शनरी कीज का कंसेप्ट क्या होता है, कीज का भी हम लोगों ने देखा है। कीज वाला फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स यू लिस्ट ऑफ कीज, जो भी कीज अवेलेबल है वो डिक्शनरी के अंदर। सो ये क्या करेगा, 3 बाहर निकालेगा, 1 बाहर निकालेगा, 2 बाहर निकालेगा। ये अनसॉर्टेड वाला फॉर्म में हमें मिलेगा, और सिंपली प्रिंट कर रही हूँ कि मैंने ये वाला कंसेप्ट बाहर निकाला है पूरे डिक्शनरी में से, और वो जो बाहर निकाला हुआ प्रिंट हो रहा है वो लिस्ट को मैंने बाद में सिंपली सॉर्ट लगा दिया, उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया है, राइट? एंड देन आई हैव प्रिंटेड सॉर्टेड लिस्ट। और वो अभी देखो, अभी यहाँ पे समथिंग कुछ तो आपका लाइक ऐसे आने वाला है ना, 3, 1 and 2। तो अभी इससे जो है मुझे सॉर्ट जो है फंक्शन मुझे 1, 2, 3 रिटर्न करेगा। बट ये पूरा का पूरा लिस्ट को आप कैसे लाइक एक्सेस करते हो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट कैसे आप लाइक ट्रैवर्स करते हो, डिस्प्ले करते हो, तो यूजिंग फॉर लूप, यस और नो? सो सिंपली आई हैव रिटन वन फॉर लूप टू डिस्प्ले दैट लिस्ट, सॉर्टेड लिस्ट, जो माई लिस्ट के अंदर हमें मिल रही है, माई लिस्ट डॉट सॉर्ट जो भी है। क्लियर और नॉट? टेल मी yes or no guys, tell me. Okay, if we are not answering, then I'll just assume that everyone has understood this concept, right? And then the next method, like next way how we can sort this list, simply ना items वाला जो हम लोगों ने अभी देखा था, items method, right? I'm just represent the if suppose किसी ने पूछा आपको कि मुझे ऐसे जो आप ऐसे कर रहे हो वैसे नहीं चाहिए, ऐसे फॉर्म में नहीं चाहिए मुझे, कहाँ गया उसका रिजल्ट है क्या मेरे पास, यस, ऐसे फॉर्म में नहीं चाहिए, पूरी की पूरी डिक्शनरी ही मुझे टपल्स के फॉर्म में, जैसे आइटम्स वाला मेथड है आपका, दैट रिप्रेजेंट्स योर डिक्शनरी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ टपल्स, राइट? तो ऐसे मुझे रिप्रेजेंट करना है, बट इन द फॉर्म ऑफ सॉर्टेड, राइट? सॉर्टेड फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट करना है सारी की सारी डिक्शनरी, राइट? सो वी कैन डू दिस टास्क यूजिंग दिस आइटम्स वाला मेथड एज वेल, राइट? So simply I am having this dictionary, same dictionary I am taking, that's why I have not commented this first wala statement, the dictionary wala statement. On same dictionary I am applied, I am just going to applied this items wala method. So एक तो लिस्ट तो फॉर्म करके लेनी ही पड़ेगी हमें, एंड देन डी डॉट आइटम्स। तो ये क्या करने वाला है, सिंपली it will create one list of all these available items present inside your dictionary in the form of list of tuples, yes or no, right? तो उसके ऊपर ये सिंपली मैं t1 डॉट सॉर्ट ये अप्लाई कर देती हूँ, एंड आई एम सिंपली प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ t1। करो क्या आ रहा है इसका रिजल्ट, simply you will get one list of tuples but in sorted order. Clear? Yes, no guys, tell me, you're just this whole dictionary is represent in the form of list,
स्क्वायर ब्रैकेट्स है उसका मीनिंग क्या होता है, लिस्ट होता है, उसके अंदर राउंडेड ब्रैकेट्स के अंदर आपके सारे कीज एंड वैल्यू पेयर्स आ रहे हैं, मतलब उसका मीनिंग क्या होता है, ये जो टपल्स के फॉर्म में आपको वो सारे कीज एंड वैल्यू पेयर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं. क्लियर? Yes, ma'am. ओके चलो. Yes, सो ma'am. ओके ओके फाइन. सो अभी एक कंसेप्ट था, मुझे जीरो ऐड करना है, देन आई वांट टू जस्ट ऐड दैट जीरो एट फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन. ये सुनो, वो एक कल मैंने बोला था करने के लिए, यस किया कि नहीं किसी ने? अभी सॉर्ट का हो गया आपका. कैन यू टेल मी हाउ टू जस्ट इंसर्ट दैट जीरो, जीरो एंड ब्लैक मुझे फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे ऐड करना है, कैसे करोगे? यहाँ पे वन से पहले मुझे जीरो एंड ब्लैक कलर चाहिए. टेल मी. यस. यस टेल मी. ऐड कैसे करते हो बताओ मुझे. अभी एक जीरो एंड ब्लैक ऐड करना है लिस्ट के अंदर. एडिंग आइटम्स टू डिक्शनरी, ये कल ही देखा था हम लोगों ने. हाउ वी कैन ऐड न्यू आइटम और न्यू एलिमेंट. यस. अरे क्या है, भूल गए क्या कल का? कीज कीज से ऐड करते हैं. फिर ओके, इफ सपोज मुझे कोई भी एक नया एलिमेंट ऐड करना है, फाइन, तो जो भी की के साथ ऐड करना है वो की आपको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में देना पड़ता है, रिलेटेड टू दैट की आपको वैल्यू उसे पास करनी है एज अ वैल्यू, फाइन, इक्वल्स टू करके असाइन करनी है. सो आई हैव जस्ट एडेड वन न्यू वैल्यू टू दिस डिक्शनरी, फाइन, एंड देन ये जो भी है सॉर्ट भी हो जाएगा. चेक करो हो रहा है क्या प्रॉपरली. आ गया क्या वन पहले? यस नो. यस मैम. इफ चाहिए तो यहाँ पे एक बार प्रिंट करो उसे. यस डिक्शनरी को यहाँ पे एक बार प्रिंट करो, वो जीरो लास्ट में आ जाएगा, एंड देन यू जस्ट अप्लाई दिस सॉर्ट वाला कंसेप्ट. ठीक है ना? सपोज डी कर देती हूँ सेम वे से, एंड देन मैं फिर से रन करके दिखा देती हूँ. ये जीरो ब्लैक कहाँ पे ऐड हुआ है? देखो यहाँ पे हुआ है. यस 3 1 2 ग्रीन एंड जीरो एंड ब्लैक लास्ट में ऐड होगा. कभी भी मैंने बोला था एडिंग वाला जो भी है अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, डिक्शनरी इज नथिंग बट योर अनऑर्डर्ड सीक्वेंस, राइट? सो इट विल ऑलवेज ऐड एट द लास्ट पोजीशन ओनली. वी कैन ऐड एट लास्ट पोजीशन एंड देन वी कैन सॉर्ट, ऐसे मैंने कल भी बोला था, राइट? क्लियर है दिस कंसेप्ट? टेल मी. यस मैम. ओके. yes that's it. So ये सारे methods available है on dictionaries. Clear everyone? Yes, ma'am. Okay. Here your second unit is finished. I declare that your second unit is over. Yes, anyone is having any issues in this all methods we have seen on dictionaries, tuples, lists? So we'll move towards our one lab experiment which is based on this list concept. सिलेबस चाहिए मुझे. सिलेबस फोल्डर हो गए यार इतने. हाँ. ओके. So when we was just completing this one, I have told you that this third one is all based on your list concept. हमारा वहाँ तब उस टाइम पे लिस्ट वाला कंसेप्ट पूरा थियोरेटिकल वे से कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए हम लोगों ने ये स्किप किया था थर्ड वाला लैब एक्सपेरिमेंट. राइट नाउ जस्ट टेल मी what we have to perform in this third lab experiment. Can anyone able to tell me?
Yes. To accept n numbers from user and compute and display maximum in list, minimum in list, sum and average of numbers जो भी लिस्ट में अवेलेबल है. बहुत इजी है, एकदम इजीएस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. लिस्ट वाला कंसेप्ट एवरीवन रिमेम्बर या भूल गए? अभी टप्पल देखा, डिक्शनरी देखा तो लिस्ट का भूल गए क्या सब लोग? ये सारे हम लोगों ने देखे थे. मीन देखा था, मैक्स देखा था, सम देखा था. ये 3 ही तो मेथड्स यूज करने हैं. दिस ऑल नथिंग बट बुल्ट इन फंक्शन अवेलेबल फॉर योर लिस्ट. यस मैम. एंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी हम लोगों ने देखा था कि एक एक हम लोग अपेंड कर रहे थे लिस्ट में. लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का भी एक मेथड देखा था हम लोगों ने कि यू हैव टू सिंपली टेक वन एम्प्टी लिस्ट एंड देन whatever the operations you have to perform on that particular elements and then you just simply create one new list. जो भी ऑपरेशन के बाद आप एक नया लिस्ट फॉर्म करते हो. तो ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड ये 3 फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस का यूज करके आपको ये सॉल्व करना है. इज इट पॉसिबल फॉर यू ऑल? टेल मी. Yes, no. Yes, start to write your code. चलो लिखो सब लोग, क्या करोगे, क्या कर सकते हो. I will not provide you ready-made code for every lab experiment. Start writing. प्रैक्टिकल जाना सर, बच्चे मैम n इनपुट मतलब कितना लेना है एक्चुअली? वो भी वैल्यू यूजर से लेनी है इफ सपोज. तो कैसे करोगे? अभी लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो भी n, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू यूजर से ही लेनी है. फाइन. सो एक कोई तो n नम, कोई तो एक वेरिएबल ले लो जिसकी वैल्यू भी हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू स्टोर इनसाइड दैट लिस्ट, ये वाला भी इनपुट यूजर से ही ले लो. देन वो नम तक आपको वो फॉर लूप चलाना पड़ेगा टू अपेंड दैट, जो भी उसने दिया है वो नंबर तक ही आपको यूजर से वैल्यू भी इनपुट करवाने हैं. n की वैल्यू भी, कितने आइटम्स हो गए लिस्ट में वो भी यूजर से लेना है एंड कौन से आइटम्स होने वाले हैं वो भी यूजर से लेना है. इज इट क्लियर? मैम अब आपका फॉर लूप जो है वो जो यूजर ने n की वैल्यू दी है, राइट, वहां तक चलेगा. टिल दैट रेंज योर फॉर लूप यू हैव टू रन. इज इट क्लियर? हाँ बोलो, किसे क्या डाउट था, बोलो. मैम एटम्स हम कुछ भी ले सकते हैं ना? नहीं, वो भी यूजर से लेनी है वैल्यू. आइटम्स की कितने नंबर ऑफ आइटम्स हो गए वो भी यूजर से लेना है. और आइटम्स कौन से हो गए? इफ सपोज अभी देखो, यूजर ने मुझे बोला है, इफ सपोज यूजर ने मुझे बोला है मुझे लिस्ट चाहिए 3 आइटम्स की. उसके बाद आप यूजर से बोलोगे वो कौन कौन से आइटम है इनपुट करवा दो. इफ सपोज यूजर ने डाला 10, 20, 30, तो इसमें से आपको निकालना है. मैक्स इज नथिंग बट आपका 30 है, मीन इज नथिंग बट आपका 10 है, देन सम ये है एंड एवरेज ये है. इज इट क्लियर? यस मैम. तो ये हाउ मेनी की वैल्यू भी इनपुट फंक्शन यू ऑलरेडी नो. इनपुट फंक्शन से ये ले लो. भाई इसके लिए आपको इनपुट फंक्शन लगेगा. इनपुट फंक्शन यूज करके ये लिख रिट्राइव करो. उसके बाद आपको ये सारा रीड करने के लिए एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा. वो फॉर कहाँ से कहाँ तक जाएगा बोलो? फॉर जो भी है, फॉर आप कोई तो एक लाइक आई ले लो, एन ले लो, जो भी है. यस, इन रेंज कहाँ तक चलेगा? टेल मी. ये जो भी इसके लिए लिया है आपने, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर होने वाले हैं उतने तक ही चलाना चाहिए ना आपको. तो ये n तक चलना चाहिए. यस और नो? टेल मी. यस मैम. यस मैम. एंड देन वन बाय वन अपेंड, जो भी यूजर डाल रहे हैं वो ये एम्प्टी लिस्ट पहले लेके रखो ऊपर. लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के केस में हम लोगों ने देखा था, li सपोज मैंने एक एम्प्टी लिस्ट लेके रखी है, then you have to one by one append this user ने दिए हुए yes values given by user, you have to simply append into this list.
एम्प्टी लिस्ट, ये फॉर लूप के अंदर डाला है तो सिंपली 1 by 1 वो ऐड होके इसके अंदर अपेंड का लाइक अपेंड फंक्शन ऑलरेडी वी हैव सीन. चेक करो अपेंड के केस में हमने कैसे किया था. अपेंड, यस, एड द एलिमेंट एट एंड ऑफ द लिस्ट. तो आपको ये सिंपली यूजर से इनपुट करवाना है, लेना है एंड सिंपली अपेंड करना है टू दिस एम्प्टी लिस्ट. अभी पूरा कोड ही तो दिया है यहाँ पे. 1 by 1 you have to append. और ये मीन, मैक्स, सम, ये तो ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल है. इसके लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे. यस, मैक्स इज, और क्या करोगे, मैक्स ऑफ जो भी है आपकी लिस्ट, ये जो भी लिस्ट आपने बनाई है तो वो लिस्ट में से पूरा मैक्सिमम वाला आपको मिलेगा. सेम वे यू हैव टू राइट वन प्रिंट स्टेटमेंट फॉर मीन. लिस्ट में से पूरा मीन वाला फंक्शन आपको मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा. सम ऑफ एल आई, सारे जो भी जितने भी अवेलेबल है उसका सम मिलेगा आपको. एंड एवरेज के लिए क्या करोगे, सम डिवाइड बाय 10th. n. यस, तो सम डिवाइड बाय n करोगे तो आपको एवरेज की वैल्यू मिलेगी. अभी सारा तो कोड लिखा है, चलो करो. यू हैव ओनली 5 minutes. करो तो बाद में ही मैं हेल्प करती हूँ आपको. एटलीस्ट ट्राई टू फॉर्म सम लॉजिक, ट्राई टू फॉर्म लाइक रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट, मीन, मैक्स, एम्प्टी लिस्ट लेना. कुछ तो फॉर्म करो. चलो. हेलो, हाँ बोलो ना. हम्म.
हो गया मैम। Just share your screen. Can you able to share your screen? मैम फोटो सेंड किया तो चलेगा क्या? मतलब फोन तो मतलब इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है। करो। Yes, everyone. Others, tell me. बाकी लोगों को क्या इश्यू है, क्यों नहीं हो पा रहा है? किया सेंड मैम। ओके वेट, देख रहे हो। ठीक है. So directly, no need to specify special range from 1 to n plus 1. You can directly give their ranges and तो वो 0 से n तक consider हो जाएगा. Is it? So if suppose you are getting confused in that case, your program is correct. Okay. ओके मैम। चलो. तो भी क्या हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था? इतना टाइम नहीं, मैं नहीं दे सकती यार आपको. और किसी का हुआ है? टेल मी. एनीवन? So simply what we have to do here, we have to take one empty list, fine. Suppose I have just taken one empty list here and then take any variable to just accept first. हमें करना क्या है? n, मतलब how many number of items should be there inside this list, वो भी value user से ही लेने हैं. And what actually that numbers will be, fine. What actually that elements will be, वो भी हमें user से ही input करवाने हैं, fine. For that reason we will require here two input statements, fine. So first मैं लिखती हूँ int input and then so simply how many like elements you want and list. ऐसा एक स्टेटमेंट लिखा है, आपको जो भी लिखना है एक स्टेटमेंट लिखो. इनसाइड प्रिंट यू कैन राइट एनी स्टेटमेंट. ओके. सो ये एक n की वैल्यू जो भी है, सपोज यूजर ने 5 डाला है तो ये num वेरिएबल के अंदर num वेरिएबल लिया है, आपको चाहिए तो n ले लो, भाई. n के अंदर मेरा जो भी है पर्टिकुलर वो 3 आ जाएगा. इफ सपोज मैं यहाँ पे हैश करके डालती भी हूँ, इफ सपोज यूजर ने 5 डाला है तो 5 जो नंबर है, 5 जो भी वैल्यू है, ये num के अंदर स्टोर हो जाएगा. And for that, till that range only we have to run our for loop, fine. So simply I'll just write here for loop for I in range of
नम है ना, ये n है, नम है मेरा, राइट। सो कोलन, सो टिल 0 से, अभी यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है, सो यू कैन कंसिडर दैट 0 टिल ये नम की वैल्यू, मतलब 0 to 5, दस फॉर लूप विल इटरेट 5 टाइम्स। ये 0 नहीं लिखा तो भी चलता है, तो इसलिए सिंपली मैंने नम लिखा, राइट। इनसाइड दैट अभी एक्चुअल आपको जो भी लाइक इनपुट उसके अंदर एलिमेंट्स डालने हैं लिस्ट के, वो भी यूजर से ही एक्सेप्ट करने हैं, राइट। तो इसके लिए ये वाली में 5 है, तो 5 टाइम्स यूजर से पूछना है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जो भी है वो एक वन बाय वन इनपुट करवाएगा, राइट। सो ये इंट एंड इनसाइड दैट आई विल राइट इनपुट एंटर एलिमेंट, ठीक है। One by one user will input numbers, and that numbers we have to simply li dot append is our method, ठीक है। append method जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, राइट। वो append से क्या कर देगा, वो ये नंबर्स उसे पास करना पड़ेगा। ये जो यूजर वन बाय वन नंबर्स डालेगा वो सिंपली वी आर अपेंडिंग टू दिस एम्प्टी लिस्ट। यस, यूजर ने फर्स्ट इटरेशन में इफ हैश कहा गया, हाँ, फर्स्ट इटरेशन में 10 डाला है, 10 क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा इनटू दिस लिस्ट, राइट। हमारे यहाँ पे लिस्ट फॉर्म होनी स्टार्ट होगी अभी, राइट। ये लिस्ट के अंदर 10 आ गया, इनटू दिस सेकंड इटरेशन इफ यूजर हैज एंटर्ड 20, देन ये लिस्ट के अंदर आपका 20 आ जाएगा। अपेंड मेथड यूज कर रहे हैं इसके वजह से, राइट। नेक्स्ट इटरेशन में यूजर ने 30 डाला, दिस 30 विल गेट अपेंडेड इनटू दिस लिस्ट। यस और नो, गेटिंग और नॉट, टेल मी एवरीवन। ओके, यस ओके। नाउ सिंपली अभी हमारा लिस्ट अभी ऐसे जो है यूजर 5 टाइम्स इटरेट होगा, 5 वैल्यूज यूजर से ले रहे, और हमारा जो भी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा बन के हमारा लिस्ट फॉर्म हो जाएगा। On this list only we have to just perform all this mean, max, sum and average, that kind of functions, right? I'll just write directly print maximum value in list equals to max function we have li, right? तो ये क्या प्रिंट करेगा मेरा, लिस्ट में से मैक्सिमम वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा, राइट। सेम ही मैं यही प्रिंट स्टेटमेंट फिर से कॉपी पेस्ट करवा देती हूँ, कंट्रोल वी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, इफ सपोज देन मिनिमम वैल्यू अनलिस्ट। मिनिमम के लिए आपके पास फंक्शन होता है min, राइट। सो ये लिस्ट में से जो मिनिमम है वो आपको निकाल के देगा। समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज in list. For that purpose you have separate function available sum नाम का, right? And for printing average, you can just simply write here sum of list divide by n। नम है ना मेरा, num के अंदर है। देखो ये नम की जो वैल्यू यूजर ने बोली है उसका ही मीनिंग क्या है, दैट नंबर ऑफ आइटम्स, दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इनसाइड योर लिस्ट। सो वही नंबर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा टू जस्ट कैलकुलेट एवरेज। यस और नो? हेलो मैम, कल तक क्या करना मुझे समझ। हाँ ना, बोलो जल्दी। यस Yes, ma'am. यस मैम। कहाँ कहाँ स्टोर किए हैं, लैब 4 है ना ये हमारी, या 3 है पता नहीं। लोगों ने थर्ड ऑलरेडी परफॉर्म की है ना, वो इफ एल्स वाली, ओके, ग्रेड वाली। ओके ओके, चलो ये फोर्थ लैब का सेशन है। हमारे लैब के 4 वाले परफॉर्म हुए हैं, 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए। अभी एक इफ सपोज मेरी n की वैल्यू, लाइक मुझे कितने नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए उसकी मैंने वैल्यू 5 डाली है, तो अभी 1 बाय 1 एलिमेंट्स डालो, 10 डाला है, 20 डाला है, 30 डाला है। अब ये कितने बार आपको मांगेगा, 5 टाइम्स। जितने नंबर ऑफ आइटम्स यू हैव प्रोवाइडेड हियर उतने नंबर ऑफ टाइम्स आपसे वो इनपुट लेगा, राइट। तो ये उसने 5 टाइम्स मुझसे इनपुट लिया है, एंड देन इट विल सिंपली प्रिंट मैक्सिमम वैल्यू 50 है क्या, यू कैन चेक नाउ।
मिनिमम वैल्यू 10 है, समेशन इज नथिंग बट 150 एंड योर एवरेज वैल्यू इज योर 30. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. कितना सिंपल था कि नहीं? हाँ, सिंपल था. फिर क्यों नहीं आया? ओके, ठीक है. तो सिंपली दैट this one is nothing but your third lab experiment. Same way you have to just prepare one word document for this third as well. बाकी जैसे मैंने फॉर्मेट दिया है उस हिसाब से बनाओ. मैम ये फोर्थ करना है या थर्ड एक्सपेरिमेंट? नहीं नहीं, अभी आप थर्ड के ही नाम के ऊपर बना दो. ये लिस्ट आपके पास सबके पास होगी ना, सिलेबस कॉपी. थर्ड के Yes, ma'am. अंदर ही, थर्ड ही के अंदर ही करना है. सीक्वेंस हम लोगों ने ऊपर नीचे किया है बिकॉज ये सिलेबस में आपके थोड़ा सा बाद में है. पहले इलेफ वाले सारे स्टेटमेंट है, बाद में सिलेबस में आपके थियोरेटिकल जो सिलेबस है उसमें एंड में है. तो इसलिए हमारा ये लैब वाला जो सेशंस है वो स्वैप हो गए हैं. बट आपके लिस्ट जो भी आप फॉर्म करोगे ना उसमें थर्ड ही लिखो, फोर्थ वन मत लिखो. ओके मैम. ठीक है. हो गया है क्या सबका? करो चलो. So here we have end with our second unit. For next 2 days, Friday, Thursday and Friday, I'm not available. I'm on leave. We will directly meet on Saturday. ठीक है. Forty six. Done, everyone? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. fine. Okay, fine. Is anyone having any issue, doubt? You can ask me. Otherwise, we will stop this meeting.